Yes, Assalamu alaikum. We are studying the biochemical composition and functions of the cell. इसमें बेटे हम माइटोकॉन्ड्रिया पर पहुंचे थे. Mitochondria, the very important organelle of the cell, and nickname, if you want to say okay, what is mitochondria in one word, in one sentence, the powerhouse. Powerhouse measure, or what is the function of the mitochondria? The energy formation. It means that it breaks down food to make ATP. जैसे कि आप सब जानते हैं कि energy is which is supplied to the cells. This is in the form of the ATP, adenosine triphosphate. And ATP is the major fuel for all cell activities that is required cell energy. अब इसमें बेटे ये है कि one question must be come into our mind कि there are certain cells in the body lacking mitochondria. कुछ हमारे ऐसे सेल हैं बॉडी में जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. तो then from where they are getting the energy? Because they also need the energy for their survival purpose. उसमें ये है कि जैसा कि we know that energy is provided by the glycolysis. Glycolysis means glucose lysis breakdown. It means that ATP is formed by the breakdown of the glucose molecules, and it is the glycolysis. So glycolysis, it's a process. इसमें जो normal है, जो electron transport chain in the inner membrane of the mitochondria, उससे फिर and when the mitochondria is available and the oxygen is available, तो होता क्या है कि plenty of ATPs are formed, near about 38. But if mitochondria is not present in the cell or there is the deficient oxygen, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है. जैसे कॉर्नियल सेल्स हैं, तो ऑक्सीजन ज़ाहिर है ऑक्सीजन इज बीइंग सप्लाइड बाय द ब्लड सप्लाई. तो जब ब्लड सप्लाई जिस टिश्यू की पूर होगी तो इट मीन दैट देयर इज आल्सो डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन. तो वहाँ पे बेटे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑफ टू टाइप्स. ये जो है एनर्जी प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म ग्लाइकोलाइसिस, ये एक तो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and it is called the aerobic glycolysis, and one is in the absence of the oxygen, it is the anaerobic. तो अब जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है तो जो सेल है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन दी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस. उसमें एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में वी हैव टू इन्वेस्ट 2 ATP में, ये हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, 2 ATP मॉलिक्यूल एंड देन देयर इज ए जनरेशन ऑफ 4 ATP मॉलिक्यूल. तो नेट क्या बचा हमारे पास, 2 ATP मॉलिक्यूल. बट इफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज अवेलेबल एंड द ऑक्सीजन इज अवेलेबल, तो क्या होगा कि देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ नियर अबाउट 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. This is the mitochondria. इसमें you can see the inner membrane जिसको हम कहेंगे, और इस पे outer membrane, and there is intermembranous space. Outer membrane is very much permeable to many nutrients, बहुत से molecules को है, but inner membrane is permeable only to the selective ones, and there are the special transporting protein which are designed for this function. Then the peroxisomes. Peroxisomes बेटे per oxide, hydrogen peroxide. So this name is derived from the hydrogen peroxide. These are basically the organelles of the cell. There is a specialized metabolic compartment and bounded by a single membrane. इसमें there are certain enzymes present in this. They convert the hydrogen and oxygen
into the water and oxygen into the hydrogen peroxide. Actually, there are certain reactive oxygen species un जो होते हैं ना जी uncoupled oxygen molecules, they can form the unwanted compounds. तो इसलिए फिर जब वो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन दी बॉडी जब हाफ मालिक्यूल यूज होता है और फिर जो आधा हमारे पास रहता है दैट इज देन कंबाइंड विद द वाटर एंड इट इज फॉर्म द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ पे बनती है? इन दी प्रोक्सिसोम। और इसीलिए प्रोक्सिसोम जो है ना ये नेम भी इन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ही ड्राइव किया है। इसका मतलब है कि ये एज एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा है कि जो ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है विच आर डेंजरस फॉर द बॉडी, क्योंकि जहाँ भी जाएंगी तो दे कैन फॉर्म द अनवांटेड मॉलिक्यूल स्पेशली इन द सेल वॉल। लिपिड पर ऑक्सीडेशन वो ऑक्सीडाइज कर देंगी और उसके बाद क्या होगा कि दे कैन कॉज द डैमेज टू द सेल वॉल। तो अब जब वो यहाँ पे वो जो सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेगा? इट विल कंबाइन विद द वाटर एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज आल्सो डेंजरस फॉर द बॉडी, ये भी बॉडी के लिए डेंजरस फॉर द लिविंग टिश्यू। सो देयर इज एंजाइम कैटालेज व्हिच इज फॉर दिस पर्पस एंड it again divide the hydrogen peroxide into normal water and simple oxygen molecule. Then there is the internal membrane compartmentalization eukaryotic cells में. There are certain जो अंदर membraneous compartment बने हुए हैं ये डायरेक्टली आपस में थोड़ा बहुत कम्युनिकेट भी करते हैं, लेकिन आमतौर पे क्योंकि जो different compartments हैं membraneous compartments हैं cells के, they have the specific enzyme or these enzymes are built in them for the specific function. तो इसलिए these are very important कि वो वहाँ से फिर दूसरी किसी जगह पे ना जा सके और वो एंजाइम जो है वो उसी कंपार्टमेंट में रहे। These are the membranous organelles participate directly in the cell's metabolism as many enzymes are built in. In general, biological membrane consists of double layer of phospholipids having diverse protein embedded in it. आमतौर पे जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी तरह ये भी मेम्ब्रेन जो है ये डबल फास्फोलिपिड्स लेयर्स बनाएगी और इसमें फिर प्रोटीन्स होंगी। प्रोटीन्स का आमतौर पे बेटे काम होता है कि दिस इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। और ईच मेम्ब्रेन हैज यूनिक कंपोजिशन, हर मेम्ब्रेन का अपना एक अलग कंपोजिशन है। और जिस तरह के यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे वो क्या है जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक से दूसरे के जाते हैं। इन दिस वे द एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड, एनर्जी बनती है ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये इनर लेयर में। तो सारे एंजाइम जो होंगे वो फिर इसी इनर लेयर में होंगे। देन द न्यूक्लियस एंड राइबोसोम, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल सेल्स हैं एंड दे आर हैविंग द जेनेटिक कंट्रोल्स। ये दोनों जो जेनेटिक कंट्रोल ऑफ द सेल है उसको ये कंट्रोल है कि उसमें जो न्यूक्लियस है दे आर गिविंग द प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एंड मैसेंजर आरएनए है दे आर कैरिंग द इंफॉर्मेशन टू दिस ये डीएनए और फिर जाके दे आर मेकिंग द प्रोटीन। न्यूक्लियस में देयर आर द डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एज वी नो, और these ribosomes जो है they will use information from DNA to make the protein. It is the near about the 5 micrometer in diameter में होते हैं और आमतौर पे जो DNA ये एक fibrous tissue like है in the form of the chromatin in the non-dividing cell. लेकिन when there is a division of the cell they become into separate structures
separate fibrous structure, and these are called the chromosome. और जैसे कि हम जानते हैं कि typical human cell contains 46 chromosomes, 23 in the eggs and 33 in the sperm. When they both unite, there is the total 46 chromosomes. Then there is a nucleolus. It is a prominent in non-dividing cell as a mass of densely stained granules and fibers, adjoining part of the chromatin. Chromatin के just adjoining, there is the prominent granules of the fiber. This is the nucleolus. There are the special types of the RNA, ribonucleic acid, and these are called the ribosomal nucleic acid. Synthesized and assembled with proteins imported from the cytoplasm with main components of the ribosome called the ribosomal. Ribosome इसका main component है, composition है, and these are called the ribosome. और ये जो सब यूनिट है, ये जो pores हैं cytoplasm में into the cytoplasm, उन pores के through they will go into the cytoplasm and वहाँ से they will combine to form the ribosome. ये अब डिपेंड करता है कि कितनी होंगी, दो भी हो सकते हैं, दो से भी ज्यादा, समटाइम 2 और मोर इन नंबर डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, द पर्पस ऑफ द वर्क कि उसको कितना काम करना. न्यूक्लियस डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस बाय सिंथेसाइजिंग मैसेंजर आरएनए. न्यूक्लियोलस क्या करता है कि ये डीएनए के थ्रू इंफॉर्मेशन देता है बाय सिंथेसाइजिंग द एमआरएनए टू द साइटोप्लाज्म, और फिर दीज एमआरएनए ये जो instruction that they carry these instructions which are provided by the DNA, and when the messenger RNA reaches the cytoplasm ribosome, these ribosomes translate to the primary structure of a specific polypeptide. Protein आपको पता है, this is basically polypeptide, and cells active in protein synthesis have nucleoli. Then the ribosomes, non-membrane enclosed, made of the ribosomal RNA and protein. Organelle that carries protein synthesis. ये राइबोसोमल आरएनए क्या है कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की लेके जा रहे हैं. And there are two subunits of these ribosomes. One is called the large with small. More synthesis of protein assignment, more will be the number of the ribosome. अब यहाँ पे है कि जितना ज़्यादा हमें प्रोटीन रिक्वायर्ड होगी उस स्ट्रक्चर में, उतनी ही भी उसकी राइबोसोम भी बढ़ जाएंगे. The example is of the pancreatic cell. अब पेनक्रियाज एक ऐसा हमारी बॉडी में ऑर्गेनल है कि विच इज फंक्शनिंग, उसका दो फंक्शन है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है. इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है, दिस इज फ्रॉम द आइलेट सेल्स ऑफ द लैंगरहॉर्न, और इसमें इट इज सिक्रीटिंग द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इंसुलिन किस वक्त सिक्रीट होगी? pancreas cell में when there is a hyperglycemia, when the glucose level in the blood is high. और glucagon कब secrete होगी? When there is a low level of glucose. Glucose gone, glucagon, glucose gone. फिर जब ग्लूकोज चला जाएगा तो then the glucagon will come. लेकिन इसके साथ ही ये digestive enzyme, the exocrine, acinar cell जो इसके हैं, they are secreting, providing the digestive enzyme. It means that the pancreas have to do a very and large function. तो उसके लिए फिर उसको राइबोसोम्स भी ज़्यादा चाहिए. तो यहाँ पे क्या होता है कि मिलियंस राइबोसोम उसके जो बनेंगे, क्योंकि उसने काम भी ज़्यादा करना है. और ये जो है दो जगह पे साइटोप्लाज्म में लोकेशन है जहाँ पे ये राइबोसोम ये बन रहे हैं, जो प्रोटीन्स बन रही है. एक तो फ्री राइबोसोम्स है और एक बाउंड राइबोसोम है. यानी फ्री राइबोसोम जो होंगे they are suspended in the cytosol, और बाउंड राइबोसोम वो होंगे these are attached to the outside of the endoplasmic reticulum और न्यूक्लियर एनवेलप जो उसके साथ जा रहा है. जब हमने देखा था ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो उसके साथ अटैच होंगे these are the bound ribosome,
और जो फ्री सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म होंगे वो फ्री राइबोसोम्स होंगे। अब इसमें जो बाउंड एंड फ्री राइबोसोम्स आर आइडेंटिकल एंड अल्टरनेट बिटवीन टू रोल्स रेगुलेटर। ये बाउंड और राइबोसोम बेसिकली ये आमतौर पे एक जैसी होते हैं और ये दे कैन बी रेगुलेशन चेंज भी होते रहते हैं, अल्टरनेट फंक्शन भी होते रहते हैं, ये चेंज भी होते रहते हैं एक दूसरे में। और अब इसमें जो दो फ्री राइबोसोम्स है वो क्या बनाते हैं और ब्राउन राइबोसोम्स वो क्या कौन सी प्रोटीन बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स मेड बाय द फ्री राइबोसोम्स फंक्शन विद इन द साइटोसोल। जो फ्री राइबोसोम्स है उनसे जो प्रोटीन बनती है वो आमतौर पे साइटोप्लाज्म के अंदर ही काम करते हैं, जिस तरह के वो उसमें डाल दिए एंजाइम्स फॉर द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जिस तरह मैंने भी बताया कि एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको ग्लूकोज लाइसिस मीन दैट breakdown of glucose. This process is carried out in the cytoplasm. ये एमसीक्यू अक्सर आ जाते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है या क्या हो रही है। तो उसने 3 4 5 ऑप्शन दिए होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस इन दी साइटोप्लाज्म, उसमें इसका फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप भी तो इसका ये हम पढ़ेंगे डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, बट यहाँ क्योंकि आ गया फर्स्ट स्टेप तो वी मस्ट नो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा। ग्लाइकोलिसिस इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब हमने ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट लिए डाइट में, एब्जॉर्ब इन द जीआईटी, लिवर में चले गए और फिर वहाँ पे दे आर कमिंग इनटू द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में आ गए। अब प्लाज्मा से दे विल गो इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ द, दे विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ द इंसुलिन। अब सेल के अंदर जाएंगे साइटोप्लाज्म में तो फिर ही ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा। तो इसलिए फिर ये जब, इसीलिए जब इंसुलिन कम होती है, किसी भी वजह से कम हो गई है, पेनक्रियाज हम यानी बाई जेनेटिकली कम है या ज़्यादा है, तो आप बड़े हैरान होंगे जेनेटिकली जो इंसुलिन कम है ये ओनली 10 to 15% है। 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनमें जेनेटिकली इंसुलिन कम होती है, जिनको हम कहेंगे जुवेनाइल डायबिटिक, कि जो पैदाइशी डायबिटिक्स हैं, क्योंकि इनमें अल्लाह की तरफ से जो इंसुलिन है वो कम सेक्रीट हो रही है। लेकिन मेजॉरिटी इज डायबिटीज 2। डायबिटीज 2 ये है कि हमारी जो इंसुलिन है, जो हमारा पेनक्रियाज है, दैट इज़ फॉर दी, उसमें जो इंसुलिन बनानी है वो फॉर एग्जाम्पल 70 kg के लिए बनानी है। तो हमने बहुत ज़्यादा खा के अपना वजन बहुत बढ़ा लिया, इट बिकम दी 110 120 kg। तो क्या होगा कि इंसुलिन विल बिकम डिफिशिएंट एंड इट इज़ कॉल्ड दी डायबिटीज। जब इंसुलिन नहीं होगी, ग्लूकोज प्लाज्मा में रहेगा, तो क्या होगा कि वो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा और फिर वो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 हो जाएगी। तो अब ये प्रोसेस जो है, जब इसने ग्लूकोज विल ट्रांसफर इनटू द सेल, तो फर्स्ट प्रोसेस वो होना चाहिए कि ग्लूकोज शुड डोंट कम आउट ऑफ द सेल, कि जो ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया है फॉर द ग्लाइकोलाइसिस ये बाहर ना आ जाए। तो इसके लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप इज दी कि ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड टू दी, यानी कार्बन नंबर 6 ऑफ द ग्लूकोज के साथ देयर इज द अटैचमेंट ऑफ द फास्फेट ग्रुप। तो क्या होगा, ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब इस में जाके मॉलिक्यूल जो बड़ा भी हो जाएगा, पोलर भी हो जाएगा, इट विल अनेबल फॉर हिम टू कम आउट ऑफ द सेल। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द, तो इसमें एंजाइम बनते हैं हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि दोनों का क्या फंक्शन है, लेकिन बहरहाल ये दो एंजाइम जो है वो कहते हैं कहाँ होंगे, साइटोसोल में होंगे। उसके बाद जो बाउंड राइबोसोम है वो क्या करें, वो प्रोटीन बनाएंगे जो कि जाके कहीं इंसर्ट हो जाएंगी या वहां से एक्सपोर्ट हो जाएंगी बाहर की तरफ। अब उसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मोस्ट ऑफ द डिफरेंट मेम्ब्रेन्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स आर पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसे कहते हैं कि बहुत से जो ऐसे हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट की शक्ल में है। जिससे मैंने बताया कि डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन है, कि डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स हैं वो आपस में कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं ताकि एक एंजाइम एक के दूसरे में न चले जाए।
These membranes are related either through direct or by the transfer of the membrane segments as tiny vesicle. आमतौर पे ये थोड़ी बहुत communication होती है tiny vesicle के जरिए. And despite these relations, various membranes are not attached. इसके बावजूद ये एक से के दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इनकी जो मुमासलत है वो नहीं है. Molecular composition, thickness and metabolic behavior of the membranes are not fixed but may be modified during the membrane life. अब ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारी जितनी भी बॉडी का जो है ना मैकेनिज्म, ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है सारा. यानी इसमें ये नहीं है कि एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं है हमारे में, तो ये कंटिन्यूसली इट इज द रिलेटिव. तो उसमें थिकनेस बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, कंपोजिशन भी थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है, और उसका मेटाबॉलिक बिहेवियर भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इट कैन बी चेंज. अब ये एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेनिक सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं. सबसे पहले तो न्यूक्लियर एनवेल्प है, जो न्यूक्लियस को जिसने आगे से घेरा हुआ है. उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अलग मेम्ब्रेन सिस्टम है. गोल्गी एपरेटस एक अलग मेम्ब्रेन सिस्टम है. लाइजोसोम्स आर इन अ सेपरेट मेम्ब्रेन सिस्टम. और फिर वैक्यूल या वेसिकल दीज आर आल्सो इन द सेपरेट मेम्ब्रेन सिस्टम. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ओवरऑल है इट कैन बी इंक्लूडेड और यू कांट. जो इसको कुछ लोग कर भी देते हैं इसमें मेम्ब्रेन सिस्टम में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड, और कुछ नहीं भी करते. तो 5 to 6 ये है हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ जाता है. न्यूक्लियर एनवेल्प, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द न्यूक्लियर एनवेल्प, इंटरनल पार्टीशन. न्यूक्लियर एनवेल्प भी ये डबल मेम्ब्रेन है विद द लिपिड बाइलेयर विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन. सारे फास्फोलिपिड हैं और उसमें प्रोटीन्स भी है. फास्फोलिपिड जो उसकी स्टेबिलिटी देते हैं, और जो प्रोटीन्स हैं वो आमतौर पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं. और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है इट इज नियर अबाउट 20 to 40 नैनोमीटर. जो पोर्स है इसमें इट इज 100 नैनोमीटर इन डायमीटर. Complicated protein structure regulate the entry and exit. This is the diagram. इसमें आप ये देखिए, you can see nuclear envelope है. Nuclear envelope में electron microscope, you can see the chromatin, you can see the nuclear pores, you can see the inner membrane or and outer membrane, and there is a internal membrane space. अब पोर के अलावा न्यूक्लियर साइड ऑफ द एनवेलप इज लाइंड बाय द न्यूक्लियर लेमिना. वहाँ पे देर आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं. इनका पर्पस क्या है कि दे आर मेंटेनिंग द शेप ऑफ द न्यूक्लियस. तो वो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, पोर्स के अलावा जो न्यूक्लियर साइड है उसमें दिस इज लाइंड बाय द इंटरमीडिएट फिलामेंट. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसको हम न्यूक्लियर लेमिना भी कहते हैं. इट इज जस्ट टू मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस. और उसके बाद you can see the framework of fibrous network extending throughout the interior of the nucleus. You can say this is the nucleus matrix. Then the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, ER. It is a very extensive network of membranes कि तकरीबन half of the total membrane अगर ले लें तो वो सिर्फ endoplasmic reticulum का ही है. Endoplasmic mean endo within the cytoplasm, or reticulum, it is just like a net. It means that endoplasmic reticulum means the net in the little net in the cytoplasm. The endoplasmic reticulum consists of a network of membranous tubules and sacs called cisternae from the latent cisterna reservoir fluid. There are a reservoir of fluids between these tubules, and these are called the cisternae या cisterna. The endoplasmic reticulum membrane separates the internal compartment of the ER called the ER lumen cavity from the cytoplasm. जो membrane है ये cytoplasm से जो cavity है ER की, endoplasmic reticulum की, उसको separate करती है. और इसके अलावा
मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ भी इसकी कंटिन्यूशन है. द स्पेस बिटवीन द two membranes of the envelope is continuous with the lumen of the ER. There are two distinct, दो connected regions of the endoplasm. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो अलग-अलग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कनेक्टेड है आपस में, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. उसमें एक तो आ जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा आ जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर. अब स्मूथ ईआर is so named because its outer surface lacks ribosome. स्मूथ का मतलब है कि इस पे राइबोसोम नहीं लगे हुए. और रफ होगा, it means there are the ribosomes are present on the outer surface of the membrane, and thus so it appears rough through the electron, if you see through the electron microscope. Ribosomes are also attached to the cytoplasmic site of the nuclear envelope's outer membrane, which is continuous with the. ये जो राइबोसोम्स हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनते हैं, ये फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जिसकी कंटिन्यूएशन है उस पे भी यू कैन सी दीज राइबोसोम्स. अब ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि स्मूथ है, आपस में कनेक्टेड है, और रफ है. स्मूथ में आप देखिए कि राइबोसोम नहीं है, और रफ एंड ईआर में राइबोसोम, आप यू कैन सी दी राइबोसोम्स. अब इनका फंक्शंस क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम? फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के क्या फंक्शन है और रफ के क्या फंक्शन है? द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन विच वेरी विद द सेल टाइप. ये हर सेल में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देयर इज ए मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन. आमतौर पे ये जो है देयर इज ए मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड पॉइजन. देयर आर एंजाइम्स प्रेजेंट. Enzymes of this smooth ER are important in the synthesis of the lipids, और इसमें including the lipid oils and steroids. एक तो ये metabolism of carbohydrates, detoxification of drug, and synthesis of lipids and steroid. Among steroid, the sex hormone and the hormone secreted by the adrenal gland. अब एंजाइम्स ऑफ द स्मूथ ईआर हेल्प टू डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन. अब जब हमने किसी ड्रग्स या पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना है, तो इट मीन्स दैट इट शुड बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी. जिस भी हमने चीज़ को बॉडी के लिए जो डेंजरस है, तो सबसे अगर इसको हम डिटॉक्सिफाई करना चाहेंगे तो इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, स्पेशली इन द लिवर सेल, आमतौर पे हेपेटोसाइट्स में. तो ये क्या करते हैं इसमें, as there are certain enzyme, they involve the adding hydroxyl group to the drugs molecule. तो वो क्या करते हैं कि they add the hydroxyl group to these drug molecules and making them more soluble and easier to flush from the body, जिससे वो soluble हो जाते हैं and they can be easily excreted out from the body. अब देखें, it's very important कि जब भी हमने किसी चीज़ को डिटॉक्सिफाई करना है तो इट शुड बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी, एंड फॉर द एक्सक्रीशन वी शुड चेंज दैट पॉइजन इनटू द फॉर्म दैट कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी. तो जो स्मूथ ईआर है, इसमें देयर आर द स्पेशल एंजाइम्स, दे आर एडिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स सो दैट दे कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी. एग्जाम्पल उसमें सेडेटिव phenobarbital एंड अदर बार्बिट्रेट्स. अब इसमें आपने देखा होगा डेली लाइफ में भी, ये सेडेटिव phenobarbital नींद की गोलियां, जैसे स्लीपिंग पिल्स, CNS डिप्रेसेंट. तो इसमें आमतौर पे आपने एक नोट किया होगा कि कोई बंदा नींद की गोली लेता है तो वो पहले एक लेता है, फिर वो उसको कुछ देर के बाद एक से नींद नहीं आती, फिर वो दो लेनी शुरू कर देता है, फिर वो तीन, इस तरह वो बढ़ता जाता है. तो उसकी क्या वजह क्या है? होता है कि देयर टॉलरेंस उसकी बढ़ती जाती है. तो टॉलरेंस बेटे कैसे बढ़ती है? वो इस तरह बढ़ती है कि जो ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि व्हेन देयर इज ए, अब उसका काम स्मूथ ईआर का ये है कि उसने ऐसे एंजाइम बनाने हैं जिसने इसको डिटॉक्सिफाई करना है.
तो जैसे ही ये phenobarbital जाएगा तो एंजाइम की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। बॉडी को क्या सिग्नल मिलेगा कि हमने अब ज़्यादा इसको एक्सक्रीट करना है, और उसके साथ ही फिर एक तो मसल भी ज़्यादा और साथ प्रोलिफरेशन ऑफ दी राइबोसोम्स भी ज़्यादा हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि वो फिर उस ड्रग को नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो नलीफाई नहीं कर सकेगा, तो फिर क्या होगा कि उसको ज़्यादा लेनी पड़ेगी वो ड्रग। This sedative phenobarbital and other barbiturates are examples of drugs metabolized in this manner by smooth ER liver cell. In fact, barbiturates, alcohol, and many other drugs induce the proliferation of smooth ER and its associated detoxification enzyme. क्या होगा कि ये इंड्यूस करेंगी उसकी प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ ईयर ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे और एंजाइम डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम भी ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, thus increasing the rate of the detoxification. तो उसमें क्या होगा, इन टर्न इंक्रीज टॉलरेंस टू द ड्रग, तो इससे क्या होगा, ड्रग की टॉलरेंस बढ़ जाएगी, मीनिंग दैट हायर डोजेज आर रिक्वायर्ड टू अचीव ए पर्टिकुलर इफेक्ट सच एज सेडेशन। और उसके बाद some of the detoxification enzymes have relatively broad action. इसके अलावा the proliferation of smooth ER in response to the one drug can increase the tolerance to other drugs as well. उनके एक्शन ब्रॉड होता है कि होती तो वो एंजाइम इसकी डिटॉक्सिफिकेशन है, लेकिन वो कई और ड्रग्स को भी साथ टॉलरेंस उनकी भी इंक्रीज कर सकती है, और इसीलिए आमतौर पे बारबिचुरेट अब्यूज फॉर एग्जांपल कैन डिक्रीज द effectiveness of the certain antibiotic and other useful drug. तो होता क्या है कि इसलिए जो बारबिचुरेट जो फीमी है उनको बहुत ज़्यादा दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि उनमें टॉलरेंस बढ़ी हुई होती है और साथ फिर वो ड्रग्स की भी टॉलरेंस हो जाती है, इसलिए यू हैव टू गिव द लार्ज डोजेज ऑफ ड्रग्स मोर देन नॉर्मल। अब मसल सेल में क्या होता है, the specialized smooth ER membrane pumps calcium ions from the cytosol into the ER lumen. तो मसल सेल में जो है ना ये जो स्मूथ ER है ये कैल्शियम आयंस को साइटोसोल से पंप आउट कर देते हैं into the ER lumen. When a muscle is stimulated by a nerve impulse, calcium ions rush back across the ER membrane into the cytosol and calcium ion release from the smooth ER triggers different responses. अब इसमें क्या होता है कि ये फंक्शन उल्टा हो जाता है जब स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स होती है, तो जो उससे फिर वो जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज उसके आने शुरू हो जाते हैं मसल्स के। अब नाउ वी कम टू द फंक्शंस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ के कौन से फंक्शन होंगे? Many types of these cells secrete proteins produced by the ribosome attached to rough ER. For example, pancreatic cells synthesize the protein insulin on the ER and secrete its hormone into the blood supply. और जो रफ है उसमें वो कहता है कि ये जो एंडोक्राइनिक फंक्शन इसका वो एग्जांपल दे रहा है इंसुलिन की। क्या हो गया, एज ए पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रोज फ्रॉम ए बाउंड राइबोसोम, ये बाउंड राइबोसोम से करेगी और थ्रेडेड इनटू द ईआर ल्यूमेन, ये जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन उसमें धागे की शक्ल में आ जाएगी थ्रू ए पोर फॉर्म्ड बाय ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन द ईआर मेम्ब्रेन. The new protein enters the ER lumen, it folds into the native shape. जब ये नई प्रोटीन आएगी तो वो अपनी जो प्राइमरी शक्ल है उसमें वो आ जाएगी. The carbohydrates are attached to the proteins in the ER by specialized molecules. These are built in the ER membrane. After secretory proteins are formed, the ER membrane keeps them separate from the proteins that are produced by the free ribosome and will remain in the cytosol. ये उससे अलग रहेगी. Secretory proteins depart from the ER wrapped in the membranes of the vesicle that bud like bubbles from a specialized region called the transitional ER. ये जब lumen ER से फिर वो transitional ER यानी transitional phase में से that will come into the transitional phase. In addition to the making secretory protein, the rough endoplasmic reticulum membrane it is a membrane factory for all the cells. ये यानी सब सेल्स के लिए मेम्ब्रेन की फैक्ट्री के तौर पे काम करती है. It grows in place by adding membrane proteins and phospholipids to its own membrane. अब मेन कंपोनेंट आपको पता है कि मेम्ब्रेन्स के क्या है, फास्फोलिपिड्स है और प्रोटीन्स है.
तो ये फिर अब उसको कीप्स इट एडिंग दीज प्रोटीन्स एंड फास्फोलिपिड्स, अपनी मेम्ब्रेन को दूसरी मेम्ब्रेन को भी. The polypeptide grow from the ribosome destined to be membrane protein. They are inserted into the ER membrane itself and are anchored there by their hydrophobic proteins. Giraffe ER also makes its own membrane phospholipids. Enzyme built into the ER membrane assemble phospholipids from precursors into the cytosol. The ER membrane expands and is transferred in the form of the transport vehicle to other components of the endomembrane system. This was all about the endoplasmic reticulum. Next, inshallah, we will start from the Golgi apparatus.